ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एयरफोर्स चीफ का बड़ा बयान सामने आया। एयरफोर्स चीफ ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट मार गिराए हैं। S-400 जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम था, उसने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई दुश्मन के एयरक्राफ्ट को सटीक मार गिराने में। यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने कहा कि हमने पाकिस्तान को समझाया था कि वो पलटवार ना करे, हम मिलिट्री एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन पाकिस्तान नहीं माना और उसने पलटवार की कोशिश की। और जब पलटवार की कोशिश की गई तो उसके बाद मुंह तोड़ जवाब दिया गया, हमने उसको तबाह कर दिया। 9 और 10 मई की रात पाकिस्तान में कयामत की रात थी। हमारी फौज ने पाकिस्तान के मिलिट्री ठिकानों पर धुआं उनको कर दिया था। एयरफोर्स एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह की तरफ से यह बयान। पाकिस्तान के 5 विमान मार गिराए, धुआं कर दिया और साथ ही यह भी कहा कि हमने पाकिस्तान को समझाया था कि वो पलटवार ना करे, हम मिलिट्री एक्शन लेंगे, लेकिन वो नहीं माना। The pictures of what we achieved. Now, before and after the attack, of course, these are satellite pictures, and after the attack pictures are immediate pictures that we got. Whereas before the attack pictures are which have been built over a period of time. So you will find there is a clarity issue, and there is a different satellite which is giving you. So sorry. So here you can see the damage, which is of course not coming out very clear in this, but other pictures, here these 2 buildings, you can see the damage much clearly. Again, another big set of buildings, and you see the damage that is coming out. What I can show you here is there's hardly any collateral that you see. Of course, from that distance, it is not very easy to make out, but still all the adjacent buildings are fairly intact. The buildings that were targeted were based on intelligence. And this is the main building of theirs, where the weapons have gone in, and it's badly damaged. Now, one thing which was good this time was that not only did we have these satellite pictures, we also had a lot of input from the locals, media, which was giving us the inside pictures, because these were areas which were open to public kind of areas also. So there were a lot of people who were going in and out. So on the net, we could get pictures like this and videos like this. This is the same building that I just showed you. You look at the damage that has been caused inside. It's all on the open net available. So I've also picked up from there. तो एयर चीफ मार्शल की तरफ से बयान आया था और उन्होंने बाकायदा नक्शे के साथ में समझाया कि देखिए बिफोर अटैक कैसी तस्वीरें थी, आफ्टर अटैक कैसी तस्वीरें थी और कितना डैमेज हमने पाकिस्तान को किया। और ये भी बताया कि S-400 जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम था, जिसकी वाही हर जगह हुई, जिसकी रक्षा प्रणाली की, और उसने पाकिस्तान के 5 जेट मार गिराए थे, पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया। एयर चीफ मार्शल की तरफ से क्या कहा गया, एक बार फिर आपको सुनाते हैं। So we all know what happened, that unfortunate incident of Pahalgam, where so many people were killed. The nation had to respond, and all that is in open media. How we were trying to achieve some things diplomatically. At the same time, we had to give them a befitting reply. We had also said, it was made very clear that this time it should be an emphatic thing that we do. We must send the message across loud and clear to them. It should not be something just limited to launch pads and training areas. It should be, if their leadership, the terrorist leadership should be challenged. So we were all called in, and we discussed a few options. Then all the other agencies also joined in. And then we decided on those 9 targets. तो देखिए सारी एजेंसियों के साथ बैठक हुई, सभी को बुलाया गया और उसके बाद में जब विचार विमर्श किया गया, फिर वो 9 टारगेट डिसाइड किए जहां पर पाकिस्तान को डैमेज करना है, पाकिस्तान को सबक सिखाना था। और उसके बाद जो हुआ
वो पूरी दुनिया ने देखा। मंजीत नेगी हमारे सहयोगी हमारे साथ में इस वक्त जुड़े हुए हैं। मंजीत, एयर चीफ मार्शल का बयान आया और उन्होंने तस्वीरों के जरिए समझाया भी कि कैसे पाकिस्तान को चारों खाने चित भारत ने किया है। पाकिस्तान के 5 जेट गिराने में हमारे S-400 का बहुत बड़ा हाथ रहा। हिमांशु, बेंगलुरु में जो एयरफोर्स चीफ है, एयर चीफ मार्शल AP सिंह, वो एयरफोर्स के जो अधिकारी हैं उनके बीच में ये प्रेजेंटेशन दे रहे थे। जो ग्राफिक्स के जरिए उन्होंने दिखाया कि किस तरह से, और सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने शुरुआत में कही कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद सरकार ने, सेनाओं ने ये तय किया था कि इस बार का जो जवाब होगा वो डिसाइसिव होगा, लाउड एंड क्लियर होगा, और न सिर्फ आतंकी बल्कि उनके जो आतंकी आका हैं, उनके जो हेडक्वार्टर हैं बहावलपुर और मुरीद के, उनको टारगेट किया जाएगा। और इसीलिए 9 टारगेट चुने गए, जिसमें से कुछ आर्मी ने टारगेट किए। 2 बड़े जो हेडक्वार्टर थे मुरीद के, बहावलपुर, उसकी जिम्मेदारी भारतीय सेना को, वायुसेना को दी गई, क्योंकि वो सरहद से दूर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत, यानी कि उसके सेंटर में थे, जहां से ब्रह्मोस मिसाइल के जरिए उनको निशाना बनाया गया। और उसके बाद जब पाकिस्तान ने उसकी जवाबी कार्रवाई की तो उसको भी भारतीय वायुसेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। अभी तक क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से ये दावा किया जाता रहा है कि भारतीय सेना के उन्होंने 5 से 6 विमान गिराए। ये पहली बार एक तरह से कह सकते हैं एयरफोर्स चीफ की तरफ से प्रमाणिक बयान के तौर पर कहा गया कि हमने उनके 6 जो फाइटर हैं वो गिराए हैं। उनके एवेक सिस्टम जो कराची के आसपास है उसको गिराया। तो एक बड़ा एक तरह से खुलासा है भारतीय वायुसेना की तरफ से। पाकिस्तान के का जो प्रोपेगेंडा था उसके खिलाफ भी एक जवाब है। और मंजीत, जो लोग सवाल खड़े कर रहे थे, जो लोग पूछ रहे थे कि भारत के कितने विमान गिरे हैं, पाकिस्तान की तरफ से जो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही थी उसको सीधा जवाब दिया गया है एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह की तरफ से। बिल्कुल हिमांशु, आपने सही कहा। अभी तक क्योंकि 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, हालांकि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है, लेकिन लगातार कुछ विदेशी एजेंसियां हों, चाहे पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड एजेंसियां हों, लगातार इस बात के लिए का प्रोपेगेंडा फैलाती रही हैं कि भारतीय वायुसेना को काफी नुकसान हुआ, हमारे 5 से 6 जेट उन्होंने मार गिराए। लेकिन वो ये इस बात को छुपाते रहे हैं कि पाकिस्तान को उसकी एवज में भारी नुकसान हुआ है। पाकिस्तान के चाहे F-16 की हम बात करें, जिसका दावा पाकिस्तान करता है, उसका जो सबसे आधुनिक एवेक सिस्टम है स्वीडन का बना हुआ, वो जो एक तरह से कमांड कंट्रोल करता है। और इसीलिए आपको ध्यान होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब पाकिस्तान के एवेक सिस्टम को ध्वस्त किया गया, उनके एयर डिफेंस कमांड कंट्रोल सिस्टम को ध्वस्त किया गया, तो पाकिस्तानी वायुसेना एक तरह से पूरी तरह से कह सकते हैं ब्लाइंड हो गई थी, जिसकी वजह से भारतीय सेनाओं को सफलता मिली। पाकिस्तान के जो अलग अलग हवाई अड्डे थे, जो उनके मिलिट्री बेसिस थे, उनको निशाना बनाने, क्योंकि वो डिफेंस नहीं कर पाए। एवेक सिस्टम और उनके जो कमांड कंट्रोल सिस्टम को ध्वस्त किया गया। और उसके अलावा जिस तरह से एयरफोर्स चीफ मार्शल AP सिंह ने साफ तौर पर कहा कि हमने उनके 6 विमान मार गिराए, तो उससे पाकिस्तान के नुकसान और प्रोपेगेंडा का पता चलता है। और मंजीत, एक बार फिर से बात यहाँ पर S-400 की भी की जानी चाहिए, क्योंकि एयर चीफ मार्शल ने बहुत स्पष्ट कहा कि हमारे S-400 ने बहुत बेहतरीन काम किया और पाकिस्तान के प्लेन्स को, जेट को मार गिराया है। और अब तो S-400 की बाकी की 2 यूनिट भी जल्दी भारत में आने वाली हैं। वो हो गया थोड़ा पीछे। मंजीत, चलिए हिमांशु, आप अपना सवाल दोहरा दें। बिल्कुल मंजीत, S-400 की भी बात यहां पर की जानी चाहिए, क्योंकि एयर चीफ मार्शल की तरफ से स्पष्ट कहा गया कि S-400 से पाकिस्तान के 5 जेट गिराए हैं और बहुत जल्द भारत को S-400 की और 2 यूनिट मिलेंगी। बिल्कुल, अभी जिस तरह से प्रधानमंत्री की जो रूस के राष्ट्रपति हैं उनसे बातचीत हुई है और आदमपुर में पाकिस्तान ने यह दावा किया था हिमांशु कि पाकिस्तान ने हमारे S-400 सिस्टम को नुकसान पहुंचाया, लेकिन असल में भारतीय सेना का जो सुदर्शन चक्र है S-400 उसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। उसने न सिर्फ पाकिस्तान की मिसाइल को डिटेक्ट किया, उन्हें न्यूट्रलाइज किया,
बल्कि पाकिस्तान के कई जो लड़ाकू विमान थे, जो मिसाइलें थी, उनको नेस्तनाबूद भी किया। तो S-400 जिसको भारतीय वायुसेना सुदर्शन चक्र कहती है, उसने सुदर्शन चक्र के तौर पर दोनों कार्रवाइयां की। न सिर्फ पाकिस्तान के लड़ाकू विमान मिसाइलों को डिफ्यूज किया, उन्हें मार गिराया, बल्कि पाकिस्तान के जो लड़ाकू विमान जो इस ऑपरेशन में शामिल थे उन्हें भी मार गिराने में सफलता पाई। और अब क्योंकि इस वक्त जो देश और दुनिया के हालात बने हुए हैं, भारतीय वायुसेना की कोशिश है कि और क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से उसमें देरी हुई थी, अब बाकी जो S-400 सिस्टम है वो भी जल्दी से भारत को मिलेंगे। बिल्कुल, बहुत जल्दी से भारत को मिलेंगे। और एक बात और जस्ट मैं इस बारे में जोड़ना चाहूंगा, जो एयर चीफ मार्शल की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान में 300 किलोमीटर अंदर घुसकर हमने सटीक निशाना साधा, सटीक वार किया, और यह बताता है कि भारत की दक्षता कितनी बढ़ गई है प्रिसाइज अटैक करने की। शुक्रिया मंजीत, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।